after the reports of alleged irregularities in the funds of Ram Mandir in Ayodhya, the questions have again come to the fore about who should handle the temple funds in India. I am Sagrika Kisu. Right now in Vrindavan, the print is traveling to different temples in Uttar Pradesh to understand who controls temple funds, how they are accounted for, and if there is any oversight. And right now I'm joined by Himanshu Goswami, who is part of the high power temple management committee of Banke Bihari temple in Vrindavan. We will be talking to him to understand that after the Ram Mandir fund controversy, what he thinks, who should manage the temple funds, and also who should look after the temple management. From the Banke Bihari temple in Vrindavan and the Bade Hanuman temple in Prayagraj to the Kal Bhairav temple in Varanasi and the Sri Krishna Janam Bhoomi temple in Mathura, questions are being asked in closed rooms. Are donation and cash counting systems robust enough? Is the management vigilant enough? There is an acute awareness that in the age of social media, every lapse will be publicly dissected. Underneath it all is a larger battle over control, echoing a long-running temple freedom movement that has been brewing in states from Tamil Nadu and Karnataka to Uttarakhand and West Bengal. Priests and Mahants in UP argue that state oversight has systematically expanded, encroaching on traditional management, one policy at a time. मैं आपको बताता हूँ कि राम मंदिर में ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों। उसका मेन कारण है कि जहाँ जहाँ सरकार का इंटरफेरेंस होगा वहाँ ये परेशानी हमेशा आएगी। अब आप देख लीजिए कि यूपी में आप राम मंदिर की बात कर लीजिए, उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी की बात कर लीजिए। अभी मैंने सुना है कि जम्मू में वैष्णो माता के मंदिर में भी फंड्स का इरेगुलरिटी आई है। साउथ में आप तिरुपति बालाजी में चरबी के लड्डू का भोग लग गया। जहाँ जहाँ सरकार का इंटरफेरेंस होगा उसका कारण है। सरकार का ना तो ध्यान डीटी की तरफ होता है, ना ध्यान भक्तों की तरफ होता है। सरकार का ध्यान केवल फंड्स की तरफ होता है। अपने डेवलपमेंट से मतलब है उनको, आपके रिचुअल से उनको कोई मतलब नहीं है। हर हमारे यहाँ हिंदुस्तान के मंदिर जो हैं सबके स्पेशली उनको बनाते हैं उनके रिचुअल्स। हमारे यहाँ के रिचुअल्स अलग हैं, साउथ के रिचुअल्स अलग हैं, ईस्ट के रिचुअल्स अलग हैं, वेस्ट के रिचुअल्स अलग हैं। सबके अलग अलग संप्रदाय हैं हमारी। ठाकुर जी को प्राप्त करने का रास्ता है वो हमारा। सरकार इंटरफेयर करती है तो सीधे ही पैसे पे आ जाती है। सरकार ने जहां जहां इंटरफेयर किया है, जब जब इंटरफेयर किया है, वहां इनरेगुलरिटी आपको फंड्स की मिलेंगी। राम मंदिर में भक्त ने दी ठाकुर जी के लिए चरण चौकी के ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए, उनका ताला लगा के उनको अदर जमा करा दिया गया। तो ये भक्त के साथ भी धोखा है। आपने जिस सेवा के लिए ठाकुर जी के लिए दिया है उस निमित्त अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा तो ये देने वाले के साथ भी धोखा है। For Goswamis of Banke Bihari, the Ram Mandir fund fraud has given them fresh ammunition in their opposition to state intervention. Dissatisfaction has been brewing at Banke Bihari for a while. Embroiled in a long court battle with the government, they see the alleged fraud as undermining the state's central argument that official oversight guarantees transparent administration. In 2025, Banke Bihari High Power Committee was formed by the Supreme Court. This 12-member high-powered interim committee was formed to oversee the day-to-day administration and management of the temple. Himanshu Goswami is one of the 4 recently inducted Goswamis on the committee that has been running on the committee. He says its monthly meetings meant to focus on facilities and the experience of devotees often digress to how much revenue the temple has generated. मैं आपको बताता हूँ हाई पावर कमेटी का बैकग्राउंड। हमारे मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए 26 मई 2025 को एक अधिग्रहण के लिए अध्यादेश लाया गया। इस हिंदूवादी सरकार ने हमारे मंदिर को अधिग्रहण करने का कोई प्रयास किया। हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ इतिहास में केवल एक इंसिडेंट हुआ था 2022 में जन्माष्टमी के दिन। वो भी उस समय चार्ज जो था वो सरकार के, सिक्योरिटी का चार्ज सरकार के पास था। एसएसपी, डीएम, नगर आयुक्त खड़े होकर ऊपर वीडियो बना रहे थे। वीडियो आपने देखा हुआ, वायरल हुआ था।
लोग नीचे मर रहे हैं, वो बेशर्मों के तरह ऊपर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं वहां पे परिवार को लेके खड़े हुए हैं। ये मेन वजह थी वहां हमारे यहाँ पे एक्ट लाने की, लोग वहां मर रहे हैं। इतिहास में पहली बार 2 दुखद मृत्यु हमारे यहाँ हुई थी हिस्ट्री में 2022 में। उसके बाद एक पीआईएल फाइल हुई, पीआईएल को गोस्वामी समाज ने अपोज किया कि ये स्क्रिप्टेड पीआईएल है स्टेट के द्वारा। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और डेवलपमेंट प्लान को अप्रूव किया कि आपको जो आउटसाइड अटेम्प्ट पर डेवलपमेंट करना है कीजिए, पर उसके फंड्स का इस्तेमाल आप खुद करेंगे, मंदिर के डीटी के पैसे का इस्तेमाल एक सिंगल रुपए का भी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया। उसके बाद वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको कंफर्म कर देती है कि 8/11/2023 का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया। 26 मई 2025 को ये एक्ट लेके आते हैं, हिंदूवादी सरकार मंदिरों के अधिग्रहण करने के लिए एक्ट लेके आती है। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें 8/8/2025 को उस एक्ट को स्टे कर देता है, एक हाई पावर कमेटी का गठन कर देता है। हाई पावर कमेटी आने के बाद वहां पे ये था कि अध्यक्ष रहेंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, एक सदस्य रहेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय करके भेजे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, मुंसिफ, ये सारे लोग रहेंगे। 4 गोस्वामी रहेंगे। हमारे यहाँ 2 शाखाएं हैं, राजभोग शाखा और शयनभोग शाखा, वहां से 2-2 गोस्वामी रहेंगे। In recent years, the state's footprint in temple administration has steadily increased. Under Chief Minister Yogi Adityanath, the Department of Religious Affairs, Dharmarth Karya Vibhag, created in 1985, has been dusted off and repurposed into a powerful engine for religious tourism. A rupees 1,000 crore budget was proposed for the department in 2022-23 against the rupees 32.52 crore it spent in 2017-18. To execute its vision, the UP government has also established several Tirth Vikas Parishads, pilgrimage development boards, in major temple towns. Headed by senior officials and retired bureaucrats, these boards carry out large-scale infrastructure projects around holy sites, from corridors to plazas. Last year, a law was enacted to create a government-appointed trust for Banke Bihari Temple as well, which opposition leaders such as Akhilesh Yadav termed a bid to indirectly take control of temples under the garb of better administration. 2 तरीके की व्यवस्थाएं चली आ रही हैं हमारे भारतवर्ष में। एक मंदिर वो हैं जो वंश परंपरा से चले आ रहे हैं, जिसमें हमारे ब्रजमंडल के अधिकांश मंदिर हैं, जहाँ पे आज से लगभग 550 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने एक डीटी को प्रकट किया और उसके बाद उनकी वंश परंपरा में हम लोग उनकी सेवायत हैं। लगभग यहाँ जो सप्त देवालय हैं वो इसी तरीके से चले आ रहे हैं। एक मंदिर वो हैं भारतवर्ष में जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी और सरकार ने उनको डेवलप किया था, या वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। जैसे राम मंदिर, अगर हम एक वर्ण उसको लें राम मंदिर को, तो राम मंदिर में शायद कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार, विश्व हिंदू परिषद, साधु महात्मा, जो भी सरकार ने उसका मैनेजमेंट बनाया वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन फिर भी फंड के मैनेजमेंट की जब बात आती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये व्यवस्था सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। सरकार को किसी भी मंदिर के बाहर अगर, क्योंकि सरकार जब भी कोई काम करती है तो पब्लिक के लिए करती है, सरकार पब्लिक डोमेन में है, उसका काम है पब्लिक को फैसिलिटी देना। पब्लिक को फैसिलिटी देने के लिए उसे सड़क बनानी है, उसे सीवर बनाना है, उसे रोड ठीक और जितनी भी लाइट्स की व्यवस्था करनी है, वाटर की व्यवस्था करनी है, कहीं कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो सरकार को उसकी व्यवस्था करनी है। तो सरकार को इन चीज़ों के लिए अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। उसके लिए मंदिर फंड नहीं है। आज आप मंदिर में आते हैं और आपकी कोई मनोकामना, आप मंदिर में क्यों जाते हैं? आप इसीलिए जाते हैं भाई किसी के बच्चा नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी को और कोई असुविधा है, किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा या किसी के बच्चे को कहीं एडमिशन चाहिए, तो उसने उसी मनोकामना से वहाँ पे अपना 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया जो उसकी सामर्थ्य थी उसने डाला। मैंने उस फंड को उठा के सीवर में लगा दिया। वो किसके लिए लाया था? ठाकुर जी के लिए लाया था कि मेरे 2 पुष्प, मेरा एक लड्डू, मेरी एक इत्र की छोटी सी पुड़िया ठाकुर जी के, मेरा एक गुलाल, मेरा एक कुछ भी तुलसी दल ठाकुर जी की सेवा में चला जाएगा इस गोलक के थ्रू।
उसकी भावना को आपने कहाँ पहुंचा दिया? सड़क पे, सीवर में, रोड में, किसी की सैलरी में, बड़े बड़े अधिकारियों की सैलरी में। आज जो अधिकारी हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख सैलरी ले रहे हैं सीईओ मंदिर में, जो सरकार ने लगाए हुए हैं। हमारे मंदिरों में ये व्यवस्था नहीं थी। हमारे मंदिर तो एक पौराणिक व्यवस्था से चलते थे। ठाकुर जी का फंड आता था। आज भी हम सेवक है ठाकुर जी के। हमारे यहाँ जब मंदिर का पहले इलेक्शन होता था हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी से, तो 4 गोस्वामी सेलेक्ट होते थे और 3 हम बाहर के जो भक्त बिहारी जी में आस्था रखते हों उनको सेलेक्ट करते थे और 7 लोग कमेटी चलाते थे। 3 वर्ष वो कमेटी चलती थी। कोई एक पैसा नहीं लेता था। 1939 की डिक्रीज की में आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जजेस को नियुक्त किया। अब उनकी 2 लाख रुपए सैलरी है, 50,000 गाड़ी का जा रहा है, 60,000 उनकी उसका रहने का रेजिडेंस का जा रहा है, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब तक मैं समझता हूँ 10 महीने में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। रिजल्ट क्या आया? अगर मैं किसी से पूछूं कि 10 महीने पहले मंदिर की जो सिचुएशन थी उसमें और आज में कोई डिफरेंस है? जीरो, कोई अंतर नहीं आया। The department, however, says it has no statutory authority over the administration of temples. Quote, Uttar Pradesh is a secular state. None of the temples is under the direct administration of the state. Religious affairs are left to sects and societies, said Vishwabhushan, Joint Director, Dharmarth Karya Vibhag. He noted that Article 25 of the Constitution permits restrictions on religious freedom only on grounds of public order, morality, and health, while the Directorate's mandate is largely confined to pilgrim safety and convenience. Bhushan, who is the CEO of Kashi Vishwanath Temple, added that the department also provides funds to the State Archaeology Department to maintain religious heritage structures and supports standalone projects such as work undertaken by Sri Kashi Vishwanath Special Area Development Board and public amenities in and around Ayodhya, Vidyanchal and Braj region. जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो हमारे प्रमुख शंकराचार्य हैं चारों पीठ के, उन शंकराचार्य के देख रेख में यदि भारतवर्ष के जिस पीठ से वो हैं अगर वह देख रेख होगा तो निश्चित रूप से उन मठ मंदिरों की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग से होगी और जो मठ मंदिर का आय होगा वह सनातन के लिए ही खर्च होगा, चाहे वो गौशाला हो, चाहे गुरुकुल हो, इस तरह के कार्यों में खर्च हो। In Prayagraj, the Ram Mandir scandal has bolstered the resolve of the city's most powerful monastic order to keep government oversight at bay. The Bade Hanuman temple, where the queue to offered prayers stretches for hours on Tuesday and weekends, is overseen by Mahant Balveer Giri, who resides at the nearby Bagambari Mutt, one of the country's wealthiest monastic complexes. Its 10-acre encompass a Sanskrit Mahavidyalaya, a Gaushala, agricultural land, and living quarters for sadhus. He is also the head or Pithadishwar of the Mutt Bagambari Gadi, which manages the temple. Quote, It has been this way for generations, said Balveer Giri in his office where he holds court for a simple wooden bed with cylindrical pillows as a television screen displays live CCTV feeds from across the temple complex. The funds are used not just for the temple but for the public welfare. We run a Gurukul, maintain over 100 cows every day, provide food and support the lives of sadhus. The entire system survives on these donations, said Balveer Giri. While there is a lot of opposition by the Mahants and priests and societies of temple against government interference, it is yet to be seen that how Ram Mandir fund fraud will unfold for temples and the state of Uttar Pradesh. This was Sagrika Kissu for The Print. Keep following us for more such videos.